JP Publication introducing digital platform for learning with Education House. Download the application Education House from Google Play Store and follow us on Facebook, YouTube and WhatsApp. Hello friends, in this video we will learn the classifications of sources of the funds. Let's see the various sources of funds in the details through this video. Sources of the funds are classified in three main categories, in which number first is on the basis of period, long term, medium term and short term. Another second is on the basis of ownership, owner's fund and borrowed fund, and on the basis of source of generation, internal sources and external sources. Let's see all the topics in the details. On the basis of period, long term. The source which fulfill the financial requirement of enterprise for exceeding 5 years means more than 5 years, then it's known as long-term financial sources. As per example, through equity shares, retained earning, preference shares, debenture, long-term loan from the financial institutions, etc. Generally, long-term fund is required for acquisitions of assets, equipment, plant, machinery and development of new technology. तो जो भी फंड हम 5 साल से ज्यादा टाइम के पीरियड में यूज करने के लिए लाते हैं उसे हम लॉन्ग टर्म फंड्स बोलते हैं. उस लॉन्ग टर्म फंड के लिए हम इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर या अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लॉन्ग टर्म की लोन लेते हैं उसे यूज कर सकते हैं. हालांकि लॉन्ग टर्म जो फंड होता है उसका इंटेंशंस एसेट्स को एक्विजिट करने के लिए यानी फिक्स प्रॉपर्टीज को लाने के लिए, प्लांट और मशीनरी को डेवलप करने के लिए या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए होता है. Another is medium term. Those funds which are required for the period more than 1 year but less than 5 years, that is known as medium term funds. As per example, the loan from banks, public deposits, loan from the financial institutions for the medium terms, lease financing, etc. are the medium term fund sources. जो भी फंड कंपनी 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लेकिन 5 साल से कम टाइम के लिए यूज करती है तो उसे हम मीडियम टर्म फंड्स बोलते हैं. हालांकि ये फंड्स कंपनी शॉर्ट टर्म के मीडियम टर्म के लिए जो बैंक में लोन होती है वहां से लाती है, पब्लिक डिपॉजिट से लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या लीज फाइनेंस से कलेक्ट करती है और उसका जो इंटेंशन होता है वो 5 साल तक के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसे फुलफिल करने के लिए किया जाता है. नंबर थर्ड इज शॉर्ट टर्म. Those funds which are required for the period not exceeding 1 year, then it is known as short-term fund. Example, trade credit, factoring, banks, commercial papers are the short-term fund sources. Generally, short-term funds is required for current assets, seasonable business requirement and administrative expenses. जो भी फंड कंपनी 1 साल से कम पीरियड के लिए लाती है उसे यूज करती है उसे हम शॉर्ट-टर्म फंड्स बोलते हैं, जिसमें ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स, कमर्शियल पेपर्स और शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट के जरिए वो लाया जाता है. जनरली हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म फंड सीजनेबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और बिजनेस के करंट एसेट्स और डे टू डे एक्सपेंसेस को पे ऑफ करने के लिए यूज किए जाते हैं. लेट्स सी द सेकंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इन विच ओनर्स फंड. द फंड्स व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस इज नोन एज ओनर्स फंड. Example, sources of ownership funds is in form of equity shares and retained earning. तो जो भी फंड बिजनेस के ओनर खुद बिजनेस में ले आते हैं उसे हम ओनरशिप फंड या ओनर्स फंड बोलते हैं. हालांकि कंपनी मोस्ट प्रोबेबली इक्विटी शेयर्स इश्यू करके या अपने कंपनी में ही जो प्रॉफिट लास्ट ईयर हुआ होता है उसे री इन्वेस्ट करके ये फंड को रेज करती है. सेकेंड इज बोरोड फंड. द फंड विच इज रेज थ्रू द लोन और बोरोइंग इज नोन एज एन बोरोड फंड. Example, sources of borrowed fund is debenture, loan from bank, loan from financial institutions, public deposit, lease financing and commercial papers. तो जब भी कोई फंड लोन से या कोई अदर थर्ड पार्टी से बोरो करके लिया जाता है तो उसे हम बोरोड फंड बोलते हैं. हालांकि बोरोड फंड डिबेंचर, बैंक की लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की लोन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग या कमर्शियल पेपर से ली जाती है. लेट्स सी नंबर थर्ड कैटेगरी on the basis of generation. Number first is internal source. The fund which are generated within the business, it's called as an internal sources. Example, collections of the bills receivable, depositings of surplus inventories and plugging back of profit. जो भी फंड बिजनेस की इंटरनल एक्टिविटी से इंटरनल पार्ट से ही जनरेट किया जाता है उसे हम इंटरनल सोर्सेज बोलते हैं.
जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो भी पेमेंट ड्यू निकलता है कस्टमर के पास से लेने का, तो उसे हम बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे, जिसका कलेक्शन करने से भी हमें फंड मिल जाएगा। हमारी जो इन्वेंटरी होती है उसकी प्राइस बढ़ने की वजह से सरप्लस इन्वेंटरी जनरेट होगी, वो भी हमारी एक अर्निंग ही है। एंड प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होगा, यानी जो भी री इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट वो सब। थ्रू दिस वे हम इंटरनल सोर्सेज ले आते हैं, यानी फंड इंटरनल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। एंड अनदर इज एक्सटर्नल सोर्सेज, द फंड विच आर जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, lenders and investors in the large amount, then it is known as external sources. Example, debenture, borrowing from the commercial banks and the financial institutions, etc. जो भी फंड बाहर के अलग अलग सोर्सेज से हम लेके आते हैं और इन्वेस्टर से लेंडर से लेके आते हैं, उसे हम एक्सटर्नल सोर्सेज बोलते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्सेज में डिबेंचर्स, बोरोइंग, कमर्शियल बैंक से जो भी लोन लेते हैं वो, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लेते हैं वो सभी एक्सटर्नल सोर्सेज माने जाते हैं। So those all are the mainly three bifurcations on the various bases of funds. Thanks for joining with us. Have a great day.